پہلے تو میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ تشریف لائے. میری آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا جو مقصد ہے وہ میاں صاحب کی جو بیل ابھی ریجیکٹ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس کے بعد میں ان کی جو صحت کا مقدمہ ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی عدالت میں رکھنا چاہتی ہوں. ان کی صحت کے حوالے سے میں 22 کروڑ عوام کو اعتماد میں لینا چاہتی ہوں، اور کچھ ایسے حقائق ہیں جو کورٹ میں کنٹیسٹ کرنے کے باوجود شاید عوام کے سامنے اس طرح سے نہیں آ سکی. تو میں سمجھتی ہوں کہ 3 دفعہ پھر وزیر اعظم ہونے کے ناطے، پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہونے کے ناطے، سینئر لیڈر ہونے کے ناطے، کروڑوں عوام کے دلوں کی دھڑکن ہونے کے ناطے عوام کا حق بنتا ہے کہ ان کو علم ہو کہ ان کے جو لیڈر ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، وہ ان کی جو صحت کا معاملہ ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے آگاہ کروں. تو بعد میں انشاءاللہ آپ کے کویسچن ضرور آنسر کروں گی، مگر میرا آج کا جو یہ مقدمہ ہے یہ میں اس وقت 22 کروڑ عوام سے مخاطب ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب کو جو دل کا عارضہ لاحق ہے وہ آج کا نہیں ہے، 15-20 سال پرانا ہے. 3 ہارٹ اٹیکس ان کو ہو چکے ہیں. 2 ہارٹ اٹیکس ان کو اس 15 سال کے عرصے میں ہوئے. تیسرا ہارٹ اٹیک ان کو اڈیالہ جیل میں ہوا. آپ کا ان کی ذرا خاموشی پلیز اختیار کریں گے، ایسے ڈسٹرکشن ہوتی ہے پلیز. تیسرا ہارٹ اٹیک شاید عوام نہیں جانتے کہ جب میں اور میاں صاحب اڈیالہ میں قید تھے تو تیسرا ہارٹ اٹیک ان کو تب ہوا تھا، اور اس بارے میں مجھے اور میاں صاحب کو لائیو رکھا گیا. وہ مجھے کیسے پتہ چلا، میاں صاحب کے علم میں وہ بات کیسے اور کب آئی، وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی. جب وہاں پر میاں صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو ایک دن مجھے میرے سیل میں آ کر، کیونکہ سالٹری کنفائنمنٹ تھی وہاں پہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، تو ایک دن میرے سیل میں آ کے مجھے بہت ایک فرینٹک میسج دیا گیا کہ آپ کو جو آفس سیکشن ہے وہاں پہ جہاں پہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کا آفس تھا وہاں آپ کو فوراً آنا ہے. تو میں گھبرا گئی، ڈر گئی، کیونکہ میرے علم میں تو تھا کہ میاں صاحب کی طبیعت اچھی نہیں ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. جب میں سپرنٹینڈنٹ صاحب کے آفس میں گئی تو وہاں کچھ حضرات بیٹھے تھے، اور انہوں نے ان میں سے کچھ کارڈیولوجسٹ بھی تھے، پیمس کے اور AFIC کے. غالباً میں نہیں جانتی کہ کس کا تعلق کس کے تھا. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ میاں صاحب کو کی طبیعت خراب ہے اور آپ ان کو کہیں کہ وہ ہاسپٹل چلے جائیں. میاں صاحب کچھ دیر میں وہاں آ گئے. ان کا کچھ سانس پھولا ہوا تھا، پسینہ بہت زیادہ ان کو آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانا. تو میں نے پوچھا کیوں نہیں جانا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اسپتال گیا تو آپ یہاں اکیلی ہوں گی اڈیالہ میں، مجھے اس چیز کا یہ منظور نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ اکیلا چھوڑ کے خود اسپتال چلا جاؤں. لیکن جتنا گھبراہٹ اس کمرے میں طاری تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی بڑی ایسی کیا بات ہوگی. اور وہ مجھے کہنے لگے کہ میڈم ہم آپ کو اس لیے بلا کے لائے کہ میاں صاحب تو ہماری بات نہیں مان رہے، تو آپ میاں صاحب کو کنونس کریں کہ وہ ہاسپٹل جائیں. اور میں نے ان کو کہا کہ ایسی بات کیا ہے، مجھے بات تو بتائیں. انہوں نے کہا نہیں بات ایسی کوئی بہت گھبرانے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو کارڈیولوجسٹ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خیال ہے کہ میاں صاحب کو، یہ شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد کا، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کا ان کا خیال ہے کہ میاں صاحب کو فوری اسپتال جانا چاہیے.
मैं महसूस कर रही थी कि कुछ ऐसी हलचल है मुझे, लेकिन मुझे बताया नहीं जा रहा था। फिर उन्होंने कहा कि एक टेस्ट मियां साहब का जो हमने, मुझे नहीं था कि उनके सेल में उनका क्या टेस्ट किया गया, उसकी जो रिपोर्ट है वो ज़रा अलार्मिंग है। आई थिंक आप कैलकुलेट करिए, मुझे डेट का इल्म तो नहीं है, क्योंकि जिस दिन मियां साहब को अडयाला से अस्पताल ले जाया गया ये उस दिन का उससे ये मैं उससे कुछ लम्हे पहले की आपको पूरी बात सुना रही। तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया। मैंने कहा जब वो नहीं जाना चाह रहे, मुझे क्या पता था कि उनको क्या हुआ। मैंने कहा वो नहीं जाना चाह रहे तो आप देखें, नहीं बिल्कुल ये देखें ना, ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। उनमें कौन कौन लोग शामिल थे उनका नाम मैं इस वक्त नहीं बता सकती। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। इन्होंने मुझे पता चला कि इन्होंने जो मियां साहब के ज़ाती नॉलेज हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं डॉक्टर अदनान खान, उनको इन्होंने इमरजेंसी में लाहौर से बुलवाया। वो लाहौर में थे और इन्होंने मुझे कहा कि वो भी अभी कुछ आधे घंटे में पहुंचने वाले होंगे। तो मैंने कहा आपने उनको भी बुला लिया लाहौर से, बात क्या है? बात नहीं बताई गई। कहा एक टेस्ट जो है वो एबनॉर्मल आया है जिसकी वजह से मियां साहब को फौरन अस्पताल जाना। मैं ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर में घबरा गई और मैंने मियां साहब को तकरीबन 1 घंटा लगा के कन्विंस किया कि आप ज़रूर अस्पताल जाएँ और मैं आप मेरी फिक्र न करें, इंशाल्लाह मैं ठीक रहूँगी। इतने में डॉक्टर अदनान भी आ गए। उनको भी इन्होंने उस वक्त कुछ नहीं बताया। मियां साहब अस्पताल चले गए। 2 या गालिबन 3 दिन उन्हें CCU में रखा गया। मुझे सिर्फ ये हुआ कि वो ICU में या CCU में है, उनको हुआ क्या है कि मुझे नहीं पता। और वो अभी और भी उनको रखना चाहते थे। ऑब्वियसली उन्होंने जो ट्रीटमेंट होगी वो की होगी, क्या किया ये मुझे नहीं, क्योंकि ना मेरी किसी भी इंफॉर्मेशन का कोई एक्सेस थी, ना मुझे कोई खबर देता था उनके बारे में। सिर्फ मुझे रोज़ ये ज़रूर इत्तला कर दी जाती थी थ्रू डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो मेरे साथ अटैच थी कि मियां साहब आज भी अस्पताल में हैं और बेहतर हो गया, उनका इलाज किया जा रहा है। तो एक दिन मुझे खबर मिली कि मियां साहब वापस आ गए। जब वो वापस आए तो मेरी उनसे 10 मिनट की मुलाकात हुई। मैंने कहा आप मुझे इन्होंने कहा कि मियां साहब डॉक्टर्स की हदायत के बावजूद, उनकी इंसिस्टेंस के बावजूद मियां साहब जो हैं वो प्रसिद्ध थे कि उन्होंने जाना है। और मरियम अकेली है, उन्होंने डॉक्टर्स को कहा कि मरियम अडयाला में अकेली है, इसलिए मुझे जाना है। लेकिन अभी भी मियां साहब को नहीं पता था उनको क्या। फिर उनको वहाँ पर मेडिकल की सहूलियात भी अपने आप दे दी गई। कार्डियोलॉजिस्ट के फ्रीक्वेंट विजिट्स भी शुरू हो गए। ECG भी हुआ करती थी। जो इमरजेंसी से निपटने के लिए चीज़ें थी वो सब उनको मुहैया करती थी। मैं सोचती रही कि ये क्या बात है। फिर अचानक एक दिन जो हमारे नॉलेज थे उन्होंने मुझे ये बात बताई कि मियां साहब को उस दिन हार्ट अटैक हुआ। मैंने कहा आपको कैसे पता? तो कोई रिकॉर्ड हमें किसी डॉक्टर ने, किसी अस्पताल में, जेल के किसी अमले ने हमें बावजूद इसके कि डॉक्टर अदनान बार बार मांगते रहे, हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। फिर टिल्स से उनकी डिस्चार्ज स्लिप मिली। ये कुछ हफ्ते बाद की बात, जिसमें ये क्लियरली लिखा था कि मियां साहब को हार्ट अटैक। क्या लिखा था मैं आपको सिर्फ हार्ट अटैक से रिलेटेड चीज़ें पढ़ के सुना देती हूँ। अगर आप काइंडली इसके ऊपर फोकस करें, ये है उनकी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो उन्होंने ना मरीज को दिया, ना मरीज के लवाहिकीन को दिया, ना उसके मालिज को दिया। ये आप ज़रा काइंडली इस पर ज़रा फोकस करें चलिए। और फिर मैं आपको इसमें से 2 या 3 जो जुमले हैं वो पढ़ के सुनाती हूँ। हो गया?
थोड़ा सा जरा वाज़ेह कर दें। ये लीजिए। इसमें जो ये है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज PIMS इस्लामाबाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट CCU। पेशेंट्स नेम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ। एडमिशन नंबर फलान। फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद नईम मलिक डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। डिस्चार्ज टाइप है आगे नॉर्मल। डिस्चार्ज डेट 1/8/2018। एडमिशन डेट 29th। Hospital course. The patient was admitted to CCU due to complaint of pain in chest and arms with discomfort. His examination was unremarkable except scars of surgery in mid-chest, legs and vitals were normal and ECG reveals sinus rhythm with prolonged PR and LVB. ये जो उनका हार्ट ब्लॉक है। In Lands, troponin level was found to be raised. Troponin level आपका तब raise होता है जब आपको heart attack होता है। Hence, patient was admitted with the diagnosis of non-ST elevation myocardial infarction, which is a heart attack, full-fledged heart attack. He was treated with full ACS protocol, acute coronary syndrome, which again is heart attack, and echocardiography was normal and troponin 1 level returned to normal. Hence, patient has been discharged. उसके बाद उन्होंने PIMS में request for the constitution of a medical board for thorough medical examination in respect of NAB convict मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सन ऑफ मोहम्मद शरीफ। अब ये PIMS की अपनी recommendation है। The troponin 1 levels were significantly raised. The raised troponin levels indicates non-ST elevation myocardial infarction, again heart attack. I hence demand an urgent visit to the patient. It was made by the cardiology and deputy executive director on 29 July 2018 at 9 AM. The cardiologist recommended to shift Mian Mohammad Sharif, Nawaz Sharif, son of Mian Mohammad Sharif, to a CCU setup immediately. ये है पूरी डिस्चार्ज रिपोर्ट भी है, उनकी recommendations भी हैं, लेकिन उसमें से जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने हाईलाइट कर दी। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि उनको पहले 2 हार्ट अटैक्स हुए, ये तीसरा हार्ट अटैक हुआ था जिसको ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट भी छुपा गई, जेल के हुकाम भी छुपा गए, और इस पे उन्होंने इतनी बड़ी गफलत बरती जिसमें अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आती, ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। और आप सब ये उनकी मेडिकल हिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उनके 2 मेजर हार्ट की सर्जरीज हो चुकी हैं, जिसमें एक सर्जरी उनके जो गवर्नमेंट थी उस दौर से पहले की है। दूसरी सर्जरी उनकी बाईपास तब हुई थी जब वो वज़ीर आज़म थे, और उनकी 3 मेजर वेसल्स ब्लॉक थी जिसके लिए उन्होंने बाईपास किया था। और वो गए चेकअप के लिए थे क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, लेकिन डॉक्टर ने क्योंकि उनको एक स्ट्रोक भी हुआ था जिसमें वो घर पे थे, मेरी वालदा साथ थी, तो उनको टांगों में तकलीफ हुई, वो खड़े नहीं रह सके, तो उनको मेरी वालदा ने पकड़ के सोफे पे बिठाया और 2-3 घंटे उनकी इसी तरह की तबीयत रही। इसी इस्लाम में उनको हॉस्पिटल लाहौर में ले जाया गया। तो जो
हुई उसमें रिवील हुआ कि एक क्लॉट था, ब्लड क्लॉट, जो उनकी टांग में कहीं किसी वेसल में चला गया था, ब्लॉक हो गई थी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र था कि वो अपने आप जो है वो निकल गया और वो उस बहुत बड़े नुकसान से वो बच गए। लेकिन उनको उस वक्त स्ट्रोक हुआ था, तो जिसके बाद उनको जब उनका चेकअप हुआ तो पता चला कि आर्टरीज की या मेजर वेसल्स जो हैं उनकी ब्लॉकेज है। तो वो चेकअप के लिए जब लंदन गए, जो डॉक्टर उनका 15-20 साल से इलाज कर रहा था उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे स्टेज पे है जिसमें मैं 1 महीने की छुट्टी नहीं ले सकता। तो डॉक्टर ने उनको कहा कि इस वक्त आप सिर्फ मरीज हैं और हम आपको वापस नहीं जाने देंगे, आपको बाईपास कराना पड़ेगा, क्योंकि 7 स्टेंट्स हैं उनके पहले, 7 स्टेंट्स हैं उनके हार्ट में पहले वेसल्स में। तो उन्होंने कहा कि मजीद स्टेंटिंग की गुंजाइश नहीं है, तो बाईपास करना पड़ेगा। तो वो बाईपास हुआ और अब जो मियाँ साहब को प्रॉब्लम है वो ये है कि उस बाईपास में 4 ग्राफ्ट्स लगे, कुछ उनकी टांग से वेसल्स ली गई, कुछ उनके शोल्डर से ली गई। तो 3 तो माशाल्लाह पेटेंट है और अच्छा चल रही। एक उनका ग्राफ जो है वो पहले दिन से टेक ऑफ नहीं किया। वो मेजर आर्टरी है जिसमें 90% ब्लॉकेज है अभी भी, और उसके लिए डॉक्टर्स समझते हैं कि 70% उनका ख्याल है कि एक और बाईपास की जरूरत है, क्योंकि स्टेंटिंग उसकी नहीं हो सकती। इसके अलावा पिछले 1 साल में एक डेवलपमेंट और भी हुई, और ये जो गवर्नमेंट ने बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट किए उसी से हमें पता चला कि उनकी गर्दन की जो आर्टरीज हैं, जिनको कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं, जो ब्लड सप्लाई ब्रेन को देती हैं, वो 60 से 70% जो है वो ब्लॉक है। और गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ने जेल में जो उनका, जब जेल से वो अस्पताल आते जाते रहे, जो उनकी MRI हुई बाद में जब 6 हफ्ते के लिए वो घर आए, तो उसमें ये पता चला कि उनके ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है वो इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ थ्रेड, फ्लो की फॉर्म में नहीं है, जिससे खुदा न खास्ता उनको स्ट्रोक का बहुत बड़ा रिस्क है, उनको अल्लाह ना करे उनको हार्ट अटैक का रिस्क है। लेकिन इसके बावजूद उनको बेल नहीं दी गई और कहा जाता है कि वो अस्पताल नहीं जाते, और वो अगर इतने बीमार हैं तो वो अस्पताल क्यों नहीं जाते, वहाँ क्यों शिफ्ट नहीं हो जाते। मैं आई विटनेस हूँ, जब वो अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे, कभी PIC में, कभी सर्विसेज हॉस्पिटल में, कभी जिला हॉस्पिटल में, तो मैं हर रोज़ थैंकफुली मुझे इजाज़त थी अस्पताल में उनको विज़िट करने की। मुझे कई डॉक्टर्स ने आके ये कहा कि मियाँ साहब का बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, ये बहुत हाई रिस्क केस है। हाथ जोड़े एक शख्स ने, एक डॉक्टर ने मेरे आगे कि मियाँ साहब को हम हाथ नहीं लगा सकते, और ये बात हम खुलेआम कह नहीं सकते, हमारी नौकरी का काम है। और क्योंकि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो उनके हाथ पांव खुले हुए, तो वो मियाँ साहब का केस लेने को, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, कॉम्प्लिकेटेड है, उनकी लाइफ को रिस्क है, इसलिए हम वो केस अपनी जिम्मेदारी पे नहीं करना चाहते। आप मियाँ साहब को उन डॉक्टर्स के पास ले जाएं जो पहले उनका इलाज करते हैं, और एक दो ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में अभी मौजूद नहीं है, वो बाहर ही हो सकते हैं। बहरहाल ये वजह है कि वो अस्पताल जाने से क्यों मना करते हैं, क्योंकि सुबह शाम अस्पताल में सिर्फ उनका ब्लड प्रेशर लिया जाता है या उनकी शुगर टेस्ट की जाती है, तो इस चीज़ पे वो तैयार नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स भी जानते हैं कि उनको किडनी का स्टेज 3 मसला है, और जो एंजियोग्राफी के लिए डाई दी जाती है उससे खुदा न खास्ता इरिवर्सिबल रीनल फेलियर का खतरा है। तो वो डाई जो है वो बहुत ही ध्यान से एक्सपर्ट हाथों में दी जानी चाहिए, जहाँ पे आपको यकीन हो कि डॉक्टर्स जो हैं वो किसी प्रेशर में नहीं है, और वो डॉक्टर्स जो हैं वो बगैर किसी प्रेशर के, किसी पॉलिटिकल प्रेशर के या बगैर किसी नौकरी के प्रेशर के उनका इलाज करेंगे। तो वरना पाकिस्तान में इलाज हो सकता है, ऐसा मसला नहीं है। बहरहाल इन सब हालात को देखते हुए, ये हालात
मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने थे, लेकिन उसमें क्यों उनको बेल नहीं मिली, क्यों उनको इलाज के लिए रिलीफ नहीं मिला, मुझे उसका इल्म नहीं है कि इसके पीछे हक़ाइक़ क्या है। लेकिन मैं इस जाली हुकूमत से तो मैं और इस जाली वज़ीर आज़म से तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि छोटा आदमी, लेकिन क्यों अदलिया का दरवाज़ा बार बार खटखटाने के बावजूद, क्यों उनकी इतनी कन्विंसिंग जो रिपोर्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, जो कि मेरे लिखे हुए नहीं हैं, कि अपने डॉक्टर्स के लिखे हुए, उसमें क्यों रिलीफ नहीं मिला, अल्लाह जानता है और मुअज़्ज़ज़ अदालत जानती है। लेकिन अगर मियाँ साहब को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो खुदा न खास्ता उनकी सेहत बिगड़ी तो इसकी जिम्मेदारी सब जो लोग इसमें शामिल हैं सब पे है। मैं ये मुकदमा आज अवाम की अदालत में रख रही हूँ ताकि 22 करोड़ अवाम इसके गवाह बन जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। दूसरी बात ये कि निहायत छोटेपन का मुजाहिरा करते हुए मियाँ साहब से जो मुलाकातें हैं, फैमिली की भी और उनके जो जमात के अरकान हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। पिछली दफ़ा जब हम ये जुमेरात को जो हमारी मुलाकात थी, इसमें मुझे फ़ोन आया सुबह कि 5 लोगों से ज़्यादा, वो भी ब्लड रिलेशंस जो हैं, उनसे ज़्यादा किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। तो शहबाज साहब गए, मैं गई, मेरे बच्चे गए। मियाँ साहब की वालदा उनको नहीं मिल सकी। मियाँ साहब की एक ही बहन है, वो गेट से वापस गई। शहबाज साहब की बेटियाँ नहीं मिल सकी, वो वापस गई। और इस बार मैंने एक अजीब चीज़ देखी, जब हम मीटिंग शुरू होने वाली थी तो मैं कमरे में आके बैठ गई। मियाँ साहब को कुछ देर बाद लाया जाता है तो एक साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा थे और मैंने मुनासिब नहीं समझा पूछना। मियाँ साहब जब आए, शहबाज साहब भी मौजूद थे, मैं भी थी, तो मियाँ साहब ने पूछा कि मेरे डॉक्टर कहाँ हैं। उनके डॉक्टर मेरे साथ गए थे, डॉक्टर नाम, उनको उन्होंने बाहर खड़ा रखा, 2 घंटे उनको अंदर नहीं आने दिए। हालांकि वो वीकली असेसमेंट करते हैं उनकी, उनको देखते हैं, उनकी जो दवाइयों में रद्द-बदल चाहिए होता है, मैनेजमेंट जो होती है वो करते हैं। क्योंकि अभी पिछले दिनों मियाँ साहब को एक एपिसोड हुआ था, उसमें क्या रिजल्ट्स आए थे, उनको क्या हुआ था, ये कुछ देर पहले की बात है। मैंने उसी दिन ट्वीट किया था जब मुझे पता चला कि मियाँ साहब को रात को 2-2:30 बजे की चोकिंग हुई थी। एक हार्ट का उनको एपिसोड हुआ था जिसमें उनका सांस जो है वो बंद हो गया था, दम घुट गया था। तो उन्होंने फिर आवाज़ दी ऊंची सी, और वहाँ पर जो ड्यूटी पे पुलिस के अफसरान थे उन्होंने कहा मेरा ताला खोलिए, मेरी तबीयत ख़राब होगी। अक्सर जब उनको वहाँ पर एंजाइना के, मैंने बताया कि उनकी एक आर्टरी 90% ब्लॉक्ड है, तो जब उनको एंजाइना के अटैक्स होते हैं तो मियाँ साहब के पास एक वाहिद चीज़ है जो सबलिंगुअल स्प्रे होती है, उस स्प्रे को वो इस्तेमाल करते हैं, या सबलिंगुअल जो टैबलेट्स होती हैं वो यूज़ करते हैं। तो कहते हैं कि 25 से 30 मिनट में उनकी तबीयत में बेहतरी आ जाती है। उस दिन जब उनको चोकिंग हुई, सांस उनका बंद हो गया, सांस उनका एक्चुअली, वो कहते हैं कि मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, तो मुझे सफोकेशन हो रही थी, तो मैंने आवाज़ दी कि प्लीज़ मेरा दरवाज़ा खोले, मैं बाहर ताज़ा हवा में निकलना चाहता हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा। तो वो भी घबरा गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो दवाई लेने के बावजूद कोई 1.25 घंटा मियाँ साहब की तबीयत जो है वो ख़राब रही। उसके बाद जो बेहतरी आई तो वो अपने कमरे में वापस आए। क्या रिपोर्ट्स आई उनकी उस वक्त में, उनको क्या हुआ था, मैं नहीं जानती। मुझसे आज तक या किसी भी से भी, उनके डॉक्टर से भी वो डिटेल्स जो है शेयर नहीं की। तो इस माहौल में जब हमारी इस दफ़ा मीटिंग हुई तो वो साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। मियाँ साहब जब आए तो मियाँ साहब ने कहा कि आप कौन सा हैं। तो क्योंकि जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट हैं वो, उनकी मौजूदगी में हमेशा हमारी मीटिंग हुआ करती है, तो वो
उन साहब की मौजूदगी में मियाँ साहब ने सवाल किया कि भाई आप कौन हैं? तो वो घबरा गए। उनका नहीं सर, वो मेरी ड्यूटी लगी है, मैं सर मेरी ड्यूटी है। ज़ाहिर हमारी बातें सुनने के लिए उनकी ड्यूटी थी और वो हमारे सर पे बैठे रहे इतनी देर पूरी। अब एक बेटी, निहत्ती लड़की, निहत्ती औरत, निहत्ती बेटी अपने बीमार बाप से वहाँ क्या बात कर रही है, उस पर भी सख्त पहरा। भाई अपने भाई से क्या बात कर रहा है, उस पर भी सख्त पहरा नोट हो रही है, सुनी जा रही है। तो भाई अगर एक 2 साल की दिन रात की मेहनत के बाद, नवाज शरीफ को जेल में डालने के बाद, सलाखों के पीछे रखने के बावजूद अगर आज आपको उनकी मुलाकातों पर पाबंदियाँ लगाने की ज़रूरत पेश आ रही है, उनकी मुलाकातों को मॉनिटर करने की ज़रूरत पेश आ रही है, मुझे ये बताएं कि कौन से महज़ब माशरे में बाप बेटी की बात, मैंने वहाँ पे क्या बात करनी थी अपने वालिद से, या उन्होंने मुझसे क्या बात करनी थी, मुझे समझ नहीं आती कि उसके ऊपर पहरे बिठाने की क्या ज़रूरत है। कौन सा इखलाक, तहजीब इस चीज़ की इजाज़त देती? कैदियों के भी कुछ हकूक़ होते हैं, शर्म आनी चाहिए। और अगर आपको इतना सब करने के बावजूद, उसको सलाखों के पीछे रखने के बावजूद अगर आपको इस इखलाकी गिरावट की ज़रूरत पेश आ रही है, तो नालायक आज़म और उसकी हुकूमत को समझ आ जानी चाहिए कि वो शिकस्त खा गया है और नवाज शरीफ पाबंदे से लासर होकर इतना सब कुछ सह कर भी आज भी माशाल्लाह सबसे ताकतवर है, उसकी ताकत से ये डर रहे हैं और वो कामयाब हो चुका है। उसको सजा, मुझे इस पर कोई दो राय नहीं है। मियाँ साहब ने इस बार भी जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने कहा कि मुझे इस पर कोई शक व शुबा नहीं है कि मुझे वोट को इज्जत दो का नारा लगाने की सज़ा मिल रही है और मुझे आवाम के लिए आवाज़ उठाने की सज़ा मिल रही है। उनका हक के हुक्मरानी, ये उनके अल्फाज थे, उनके आइन और कानून की बात करने की मुझे सज़ा मिल रही है। और मैं बहुत अल्लाह ताला के दिए हुए हौसले के साथ मैं इस जंग को लड़ रहा हूँ। मैं एक मिनट के लिए भी नहीं घबराया जब मैं ये सोचता हूँ कि ये जंग मेरे आवाम के लिए, ये सज़ा मैं अपने आवाम के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो मुझे हमेशा एक नया हौसला मिलता है। तो ना उन पर कोई करप्शन साबित हुई, ना उनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा है, इकामा पे उनको निकाला गया, जज खुद लिख रहा है कि कोई करप्शन साबित नहीं हुई, तो अजम्पशंस पे उनको सज़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सियासी कैदी हैं, वो वोट को इज्जत दो की सज़ा भुगत रहे हैं, वो आइन और कानून और सिविलियन बालादस्ती का नारा लगाने की सज़ा भुगत रहे हैं। और इसमें इंशाअल्लाह ताला वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ करोड़ों आवाम हैं। तो ये मुकदमा जो है मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। मैडम ये आप हॉस्पिटल में पीएसी में, मगर ये मैं बात नहीं करूँ, डॉक्टर्स जब दूध रिसीव किया तो डॉक्टर ने ये कहा कि मियाँ साहब हम आपको रख नहीं सकते, तो मतलब वो खुद हम आपको यहाँ पर मियाँ साहब ने ये कहा था कि हम आपको एडमिट, डॉक्टर्स ने खुद आगाह किया था कि हम आपको यहाँ पर एडमिट नहीं कर सकते। मगर ये डॉक्टर्स की परेशानी है कि उनको तो मुश्किल वक्त है। दूसरी बात ये मैडम आपसे पूछी थी, एक बात मैं आपको बता दूँ, आई एग्री विद यू, जो आपने कहा वो सच है। हमारे एक बहुत प्रोमिनेंट लॉयर है, वो कहते हैं कि मैं किसी जगह बैठा हुआ था तो वहाँ 1 या 2 जो मियाँ साहब का बोर्ड था उसमें जो डॉक्टर्स थे वो भी वहाँ बैठे हुए थे, कोई निजी फंक्शन था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो आपने रिपोर्ट्स बना के दी ये तो बड़ी अलार्मिंग है मियाँ साहब, तो क्या आपने प्रेशर कितना था आपके ऊपर? उन्होंने कहा कि मियाँ साहब के लिए जो हमने रिपोर्ट बनाई है उसमें अभी हमने 80% जो है उसकी जो सेवेरिटी है डिजीज़ की उसको कम करके बताया है। क्योंकि एक तो हम अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डाल सकते, दूसरा रिपोर्ट का एक लफ्ज़ जो है वो मॉनिटर किया जा रहा था और वो बैठ के जो है वो लिखवाया गया। आप ये समझते हैं कि जो बीमारियों की तफसील है मियाँ साहब की, जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री है, जिसमें मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, उनको बहुत सीवियर हार्ट प्रॉब्लम है, उनको किडनी का इशू है, स्टेज 3 पे उनकी किडनी है, स्टेज 4 अल्लाह ना करे इज़ इरिवर्सिबल।
रीनल फेलियर, किडनी का फेलियर, जिसके ऊपर खुदा न खास्ता वो हमेशा के लिए डायलिसिस पे चले जाएंगे। इसके बाद वो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है वो आप डायलिसिस पे जो पेशेंट्स होते हैं वो आप बेहतर समझते हैं। इसके अलावा उनको स्ट्रोक का भी खतरा है। और एक इंकशाफ में अमल कर दूँ, 6 हफ्ते के दौरान उनके जितने टेस्ट हुए उसमें उनके कुछ जो चेस्ट में उनकी कुछ गदूद ऐसे हैं जो बड़े हुए जिनकी बायोप्सी होनी ज़रूरी है, और वो सर्जिकल बायोप्सीज होंगी क्योंकि वो हर क्लस्टर में से एक लिम्फ नोड को उठाकर या चंद लिम्फ नोड्स के क्लस्टर्स को उठा के, वो मेरी वालदा का जो केस था वो सीने में से वो 2-3 जगह पे उनकी सर्जिकल बायोप्सीज होनी, जो कि इन इटसेल्फ एक कंप्लीट ऑपरेशन होता है। उसमें वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सिजन बायोप्सी उसको कहते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें क्लस्टर्स में से उठाते हैं और 1-2-3 हफ्तों के या महीने के वक्फे के साथ वो डिफरेंट जगहों से वो लेके उनकी सर्जिकल बायोप्सीज करते हैं। तो वो उन्होंने रेकमेंड की है। मियाँ साहब का मैंने आपको बताया कि सबसे पहले उनका एंजियोग्राम ज़रूरी, जिसका मतलब ये है कि उनकी एंजियोग्राफी होनी चाहिए होगी जिससे उनको डाई दी जाएगी जो उनके किडनी के लिए मोहलिक है। तो बहुत एक्सपर्ट हाथों में होगा, डाई ऐसी दी जाएगी, स्लोली दी जाएगी, स्टेजेस में होगा जो उनके किडनी को अफेक्ट ना करे और खुदा न खास्ता रीनल फेलियर की तरफ मामला ना जाए। तो ये कोई जुकाम खांसी का इलाज नहीं है जो 6 हफ्ते में हो जाएगा। मियाँ साहब का इलाज एक ऑनगोइंग चीज़ है जिसको महीने नहीं शायद साल लग जाएंगे। एक सर्जरी उनको पेसमेकर डलना है, वो एक अलग सर्जरी होनी है उनकी। एक उनको ऐसी डिवाइस लगनी है जो हार्ट के इर्द गिर्द लगती, जिसकी तारें हार्ट में जाती हैं, जो आपको खुदा न खास्ता कार्डियक अरेस्ट से बचाती है। तो ये मल्टीपल सर्जरीज उनकी होनी 6 हफ्ते में नहीं हो सकती थी। 6 हफ्ते में उनके सारे टेस्ट मुकम्मल हुए, जिन टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो हमने अदालत में जमा करा दी थी। उनको प्रॉबेबली महीने और साल लगेंगे उनके इलाज के लिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आज आप दिल की सर्जरी करें, परसों आप उनकी एक्सिजन बायोप्सी करें, उससे अगले दिन अभी वो होश में ना आए हो तो आप उनकी कोई ये पेसमेकर लगाने की सर्जरी करें, उससे अगले हफ्ते। ये तो नहीं हो सकता ना भाई। तो ये चीज़ें अदालत के इल्म में लाई गई थी, सारे जो हक़ाइक़ हैं वो आवाम तक नहीं पहुँचते। तो ये सब चीज़ें कि क्यों 6 हफ्ते में उनका इलाज नहीं हो सकता, 6 महीने में भी नहीं हो सकता। उनको इलाज चाहिए और वो ओवर द मंथ्स और ईयर्स उनको होगा। एक सर्जरी से वो रिकवर करेंगे तो उनका दूसरा इलाज होगा, दूसरी सर्जरी से वो रिकवर करेंगे तो उनका तीसरा इलाज होगा। साइमल्टेनियसली ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो 6 हफ्ते में तो भाई खांसी और जुकाम का इलाज नहीं होगा। आपके जो डॉक्टर्स हैं उनकी तमाम रिपोर्ट्स जो हैं बाहर उनकी नॉलेज है, अपने अपने एरिया के स्पेशलिस्ट्स हैं, वर्ल्ड रिनाउंड है, नाम है, उनकी प्रोफाइल्स के साथ उनकी रिपोर्ट, उनकी रिकमेंडेशन सारी अदालत में पेश की गई। तो आपके सवाल को उनकी सबकी कॉपीज भी मौजूद हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं मुहैया कर दूँगी। तो आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या मुतालबा करना चाहिए? उन्हें क्या इलाज के लिए बाहर भिजवाना चाहिए, या आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से या वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कोई रिलीफ मांगना चाहिए, क्योंकि अदालत से आपकी सजा तो मंजूर नहीं हुई? अब आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं ना इस जाली हुकूमत से कोई रिलीफ मांग रही, ना ही कोई रिलीफ दे सकते हैं। जो खुद किसी का मोहताज हो किसी को क्या रिलीफ देगी? तो मैं बिल्कुल भी किसी से रिलीफ नहीं मांग रही। मेरा आज का मकसद मियाँ साहब की सेहत की जो एक बहुत सीरियस सिचुएशन है उसको मैं आवाम के सामने रख रही हूँ। मैं 22 करोड़ आवाम को गवाह बना रही हूँ, क्योंकि ना मियाँ साहब ना ये मिसल है और ना इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब को मुर्सी बनने मैडम आपके बताएं कि आप एक 22 करोड़ आवाम के सामने इतना मुकदमा रख रही है। मुस्लिम लीग खुद एक बहुत बड़ी जमात है, तो क्या आइंदा के हवाले से हिकमत अमली क्या है? देखिए मियाँ साहब से जो रात को जब मेरी मुलाकात होगी तो हमारी लीगल स्ट्रैटेजी आगे क्या होगी इस पर मैं उनसे ज़रूर बात करूँगी, डायरेक्शंस दूँगी। जैसे
वैसे होगा इसके बारे में। हम बार बार अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, हम बार बार कभी ये जानते हुए भी कभी लगता है कि रिलीफ नहीं मिलेगा, फिर भी अदालत का दरवाज़ा भी खटका रहे हैं, अदालत का दरवाज़ा भी खटका रहे हैं, इस उम्मीद में कि इंशाल्लाह एक दिन उनको इंसाफ जरूर वो हुकूमत के साथ मिलकर मिसाल जमहूरियत मिसाल की बातें कर रहे हैं और इस किस्म का तासर जा रहा है कि शायद वो हुकूमत के साथ कुछ ऐसी बातें करना चाहते हैं जिस सिलसिले में हुकूमत को सपोर्ट करना चाहते हैं। जब आपकी पोजीशन आपकी अपनी पार्टी हुकूमत के साथ इस हद तक तावन पर होकर आए उनको ये सब कारण देखिए, शहबाज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, और उनका मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव भी। उनकी जो हुक्म वर्ती है उस पर ज़र्रा बराबर भी किसी को शक नहीं है, और उन्होंने जो मिसाकी मईशत की बात की है उसमें डेफिनेटली उनके पेश नज़र वो चीज़ें होंगी जो शायद मेरे पेश नज़र नहीं है। उसमें मुल्क का जो आगे बढ़ना चलना, पार्लियामेंट का जो तकद्दस है, जो हम देखा पार्लियामेंट में क्या हुआ, वो उनके पेश नज़र रहा होगा, उनकी एक अपनी राय है। अब जो मैं आपको देने लगी वो मेरी ज़ाती राय है, और ऑब्वियसली मुझे अपनी ज़ाती राय देने का हक एज ए पाकिस्तानी भी है, एज ए PMLN मेंबर भी है, एज ए PMLN वर्कर भी है, और मैं हर मौके पर अगर मेरी कोई डिसेंटिंग नोट होता है किसी चीज़ पे, या मुझे कोई मेरा नुक्ता नज़र किसी से मुख्तलिफ होता है, तो मैं पार्टी मीटिंग्स के अंदर मियाँ साहब की प्रेजेंस के अंदर, शहबाज शरीफ साहब की प्रेजेंस के अंदर बहुत मुअद्दबाना तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखती हूँ। रिजेक्ट हो जाए और बात है, एक्सेप्ट हो जाए वेरी गुड, और उस पर फिर फैसला होता है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है, ये मेरे ज़ाती राय है कि मिसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है मेरा ख्याल, और जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, जिस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद किया, जो जाली तरीके से इक़्तिदार में आया, वोट चोरी करके इक़्तिदार में आया, जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना चाहिए। आज आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को जिस शख्स ने, नालायक आज़म ने, जिसकी नालायकी ने, जिसकी नाअहली ने स्टॉक एक्सचेंज को दबो दिया, पाकिस्तान की मईशत को दबो दिया, ग्रोथ रेट आपकी 6 से गिरती 3 से कम हो गई, पाकिस्तान के कर्जों का हुजम इतना ज़्यादा बढ़ गया, पाकिस्तान की तरक्की को जिस नालायक आज़म ने रोक दिया, जिस शख्स ने आए दिन जो है वो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आवाम का जीना दोभर हो गया, उस शख्स से मिसाल उसको तो ये एनआर देने के मुताबिक होगा, जिस बात पे उनका घेराव करना चाहिए, जिस बात पे उनको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना चाहिए, उनको आप किस तरह से ये रिलीफ दे सकते हैं। वो तो देखिए ना, आप किसी और चीज़ पे तो वो तैयार नहीं है, वो अपनी नालायकी और अपनी नाअहली से उसने मईशत का जो हाल कर दिया है, उस पर वो चाहता है कि ऑपोजिशन जमातों की मोहर भी लग जाए, तो एंडोर्समेंट हो जाए। ये नहीं हो सकता। जवाब उसको देने दें, उसका घेराव करना चाहिए, उससे जवाब लेना चाहिए, और जो भी उसकी गिरती हुई साख को सहारा देगा, वो आवाम की अदालत में, वो कोई भी ऑपोजिशन पार्टी हो, वो आवाम की अदालत में मुजरिम ठहरेगी, मुजरिम कहलाएगी। तो इस जुर्म में हमें हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए, और जो जाली तरीके से हुकूमत में आता है, जो वोट चोरी करके आता है, जिसका मैंडेट ही नहीं है, जो मैंडेट चुरा के आता है, आप उसको
मीसाक की ऑफर नहीं करते, आप उसको इबरत का निशान बनाते हैं ताकि आने वाले वक्त के अंदर कोई भी दोबारा आवाम के वोट को रोंद के इतना घिनौना खेल मुल्क के साथ न खेल सके। तो ये तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल में कोई एनआरओ उसको नहीं देना चाहिए, उसको अपना कंधा नहीं देना चाहिए। जो उसने ना एंटी और ना लाइकी से कौम का हशर किया है, मईशत का हशर किया है, पाकिस्तान का हशर किया है, उसको वो जवाब देना पड़ेगा, उससे जवाब मांगना चाहिए। आप देखें कि वो किसी और चीज़ पे राजी नहीं होता, लेकिन इस पे कमेटी बनाने में कितनी जल्दी राजी हो गया। उसी से पता चल गया कि वो राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। तो अपनी नाअहली और नालायकी का जो हिस्सेदार है वो अपोजिशन पार्टीज को बनाना चाहता है, तो इससे दूर रहना चाहिए। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि हर कैदी का एक लीडर की कब्जा होने के नाते, एक बेटी होने के नाते जब यहाँ पे आवाज़ नहीं सुनी जा रही, तो क्या एक बेटी अपने बाप के इलाज के लिए, उसकी जिंदगी को सेव करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट से गिरफ्तार कर सकती है इंसानियत की तंजीम में? लेकिन जिस दिन मियां साहब की ये बेल का फैसला आया था, रिजेक्ट हुई थी, उस दिन आपने शायद मेरे ड्रीम्स पढ़े होंगे। मैंने विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैंने एक बात कही थी कि मैं मियां साहब की सेहत का, क्योंकि वो मेरे लीडर भी हैं, वो करोड़ों आवाम के लीडर हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात की लीडर हैं, 3 दफ़ा की वज़ीर आज़म हैं, इसके अलावा वो मेरे वाले हैं। तो मैं उनका मुकदमा हर जगह लड़ूंगी, आखिरी हद तक जाऊंगी, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं इंशाअल्लाह करूंगी। और एक बेटी अपने बाप का मुकदमा क्यों ना लड़े, मैं बतौर PMLN की कारकुन भी उनका मुकदमा लड़ी हूँ, लेकिन मुझे कोई इस चीज़ में कोई भी ज़र्रा बराबर भी मुझे इस चीज़ में ना कोई आर है ना शर्म है कि एक बेटी अगर अपने बाप का मुकदमा नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा। मैं ना सिर्फ उनका मुकदमा लड़ूंगी, बल्कि आप सब जो सहाफ़ी हज़रात हैं जो इतनी पाबंदियों का शिकार है, खौफ का शिकार है, आपके थ्रू हमारा मैसेज भी आवाम तक पहुंचता है। और अगर आपका एक हिस्सा जो है वो खौफ में भी मुब्तला है, आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं ना उठाएं, मैं आपके लिए भी आवाज़ उठाऊंगी। मैं इस मुल्क में जो इज़हार राय पे पाबंदी, ऑलमोस्ट पाबंदी लग गई है, मैं उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाऊंगी। मैं कुर्बानी का बकरा बनने को तैयार, मैं अपने आप को ऑफर करती हूँ हर चीज़ के लिए। मैं सब अपने ऊपर, मैं मियां साहब के लिए, नवाज शरीफ के लिए, करोड़ों दिनों की धड़कन के लिए मैं आखिरी हद तक जाऊंगी इंशाल्लाह। मैं अपना प्रोग्राम पूरा मुरतब कर रही हूँ, आने वाले दिनों में आपके सामने बहुत कुछ आपको बिल्कुल हक है कि आप वालिद का मुकदमा लड़ें, लेकिन ये बताइएगा कि 1 साल पहले आपके वालिद साहब ने ये कहा था कि मेरे दिल में कुछ ऐसे राज हैं जो मैं बताऊंगा वक्त आने के, तो क्या वजह है कि वो राज अभी तक सामने क्यों नहीं आए, और आप क्या अब वो राज उनसे लेके आवाम को बताएंगे ताकि उनके भी दिल का बोझ हल्का हो? देखिए बहुत मुश्किल काम है, बहुत दिल जिगर का काम है कि आपको सब पता हो और आप मुल्क और कौम की खातिर बर्दाश्त करें, अपने ऊपर सह जाएं, अपनी बेटी को जेल में जाता देखें, अपनी बीवी को बिस्तर मर्द पे छोड़ के आएं सज़ा भुगतने के लिए, और सज़ा उनको किस तरह हुई है, क्या हुई है, वो आप सब जानते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। जबकि वो एक ही दिन में, एक ही लम्हे में सब कुछ आवाम को बता भी सकते हैं, अपना मुकदमा उनका बहुत कन्विंसिंग है, कर भी सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कि मुल्क को वो कोई ऐसी पर्सनल कोई ऐसी चीज़ करके मुल्क को किसी और बुरान से अगर कोई विचार होता है तो इस पर उन्होंने बहुत सब्र किया। और ये सिर्फ एक इतने बड़े लीडर का हौसला है, वरना 5 मिनट से ज़्यादा का खेल नहीं। ये फरमाइएगा कि जेल में कैद बीमार हालत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब क्या मिसाक की मईशत के हामी हैं या वो भी इससे मजाक की मईशत? और वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल ऑपोजिशन किसी किस्म की कोई कमजोरी ना दिखाए। वो ये समझते हैं कि तरक्की करता हुआ पाकिस्तान अगर आज तनज़्ज़ुली की तरफ चला गया तो
उसका हिसाब किताब होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर कमीशन बनने। एक और चीज़ थी, एक तहकीकाती कमीशन हुकूमत ने काम किया है कि माजी की 10 साल हुकूमतें जो हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर कर्जे लिए। आपने भी कर्जों में इजाफे का जिक्र किया है और अमलन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मईशत आज कर्जों की मईशत बन चुकी है। इस तहकीकाती कमीशन के हवाले से आपकी राय क्या है? और जिस मुआशी सूरत हाल का आपने जिक्र किया है, इस मुआशी सूरत हाल के खिलाफ आपकी पार्टी कब सड़कों पर आ रही है? आपने 2-3 सवाल इकट्ठे कर दिए, तो पहले कमीशन का जवाब दे दूं। देखिए, जिस शख्स ने अपने 10-11 माह की मुद्दत में पहली जो उनका फिस्कल ईयर है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें 5,000 अरब के कर्जे वो नालायक आज़म ले चुका है। PMLN के 5 साल की हुकूमत के कर्जों का हुजूम 10,000 अरब, ठीक है, और इसका एक 10 महीने का जो कर्जे इसने लिए वो 5,000 अरब। तो जिस शख्स ने 10 माह में तेज तरीन स्पीड सबसे ज्यादा कर्जे लेने का रिकॉर्ड बनाया, जिसने उस कर्जे का 1 रुपया भी किसी अवामी मंसूबे पे नहीं लगाया, जिसने एक ईंट लगाए बगैर अवाम को, पाकिस्तान को कर्जों के बोझ तले दबा दिया है, वो आज कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहा है। वो आज कमीशन बना रहा है, जिसको जो कर्जों का असल मुजरिम है, जिसको हिसाब देना है कि उसने 10 महीने के अरसे में उसने रिकॉर्ड कर्जे क्यों लिए। कभी किसी पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में इतनी तेजी से कर्जों का हुजूम नहीं बढ़ा, और वो बजाय सवाल का जवाब देने के, बजाय इसके कि वो आज कटहरे में खड़ा हो, वो कमीशन बना रहा है। तो कमीशन तो मेरा ख्याल है कि बनेगा और जरूर बनेगा, लेकिन वो कमीशन जो है वो 2008 से शुरू नहीं होगा, वो 1999 से शुरू होगा, और वो 2017 पे ख़त्म नहीं होगा, वो 2018 पे ख़त्म नहीं होगा, वो 2019 का ये जो 10 साल का रिकॉर्ड है कर्जे लेने का, उसमें 2019 जो कि नालायक आज़म का पहला फिस्कल ईयर है, जिसमें उसने 10 महीनों में मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया, वो ये साल भी उसमें इंक्लूडेड होगा। और उस कमीशन के अंदर सिर्फ कर्जों की तहकीकात नहीं होगी, उस कमीशन के अंदर ग्रांट्स की तहकीकात भी होगी कि वो कौन सी ग्रांट्स थी जो पाकिस्तान में आई, किस वक्त आई, वो ग्रांट्स कहाँ गई, चाहे वो कोलिशन सपोर्ट फंड हो या वो कोई भी हो, वो ग्रांट्स भी उसमें शामिल होंगी। और उसमें ये भी होगा कि सबसे ज़्यादा कर्जे किस हुकूमत ने लिए, उसका जवाब आप सबको पता है कि नालायक आज़म की जाली हुकूमत ने सबसे ज़्यादा कर्जे लिए हैं। और फिर एक चीज़ जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने जो कर्जा लिया था 5 साल में, उसके पास तो दिखाने के लिए उस कर्जों की दिखाने के लिए उसके पास बहुत बड़े बड़े मंसूबे हैं, जिसके अंदर सलमान गनी साहब सुनिए, जिसके अंदर 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे शामिल हैं, उसके अंदर विक्की का मंसूबा शामिल है, उसमें तरबेला 4 का मंसूबा शामिल है, उसमें नीलम जेलम का मंसूबा शामिल है, उसके अंदर ये कच्ची कनार का मंसूबा शामिल है, उसके अंदर हवेली बहादुर शाह का मंसूबा शामिल है, उसके अंदर 1700 किलोमीटर जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास मोटरवेज शामिल है। उसके अंदर पाकिस्तान ने उन 5 सालों में तारीख की कामयाब तरीन और महंगी तरीन दहशतगर्दी से निपटने की जंगें लड़ी हैं, जिसमें ज़रबियत अज़्ब शामिल है, जिसमें रद्दुल फसाद शामिल है, जिसमें कराची का तारीख का सबसे बड़ा और कामयाब ऑपरेशन शामिल है। तो ये तो दिखाने के लिए मुस्लिम लीग नून के पास बहुत कुछ है, कर्जे कहाँ लगे, तो ये क्या दिखाएंगे कि ये 10 महीने में एक ईंट लगाई, कहीं 1 रुपया भी आवाम के ऊपर खर्च किया कहीं, तो दिखा दो इनके पास क्या है दिखाने के लिए। क्या वो जो बिलियन ट्रीज लगाए जो लगे ही नहीं है वो है दिखाने के लिए, या फिर इनके पास वो जो BRT का मंसूबा है, पेशावर का रैपिड बस जो मंसूबा है,
جس کے وجہ سے جو پشاور ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے، جس کو پتہ نہیں کہ اربوں روپے اس کا بڑھ گیا ہے بجٹ جو ہے، اور وہ کب بنے گا، کب پورا ہوگا، کیا وہ دکھائیں گے عوام کو؟ کیا بتائیں گے؟ اور ایک بات یہ کہ جو قرضے عوام کی خدمت پر لگے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، سوال ان قرضوں کے بارے میں ہوگا جو ایک نالائق اعظم کی نالائکی اور نااہلی کی نظر ہو، سوال ان کے بارے میں ہوگا۔ اور پھر اس کے علاوہ روپے کے اندر جو ڈیویلویشن ہوئی جس میں تیزی سے ڈالر اوپر گیا ہے، 35 روپے کے قریب نالائق اعظم کی حکومت میں ڈالر اوپر چلا گیا ہے، اور وہ صبح اٹھ کے کہتا ہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رات کو ڈالر اوپر چلا گیا، مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلا۔ تو اس نالائکی کا بھی اس کمیشن میں اس کو بھی لانا چاہیے کہ وہ ڈالر کے اوپر جانے سے پاکستان کے قرضوں کے حجم میں کتنے بڑے ہیں وہ قرضے، کتنا اس میں راتوں رات اربوں روپے کے اضافے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک کا انٹرسٹ ریٹ ہے جو 6 سے 12 پہ چلا گیا، 6.25 ٹو بی پریسائز سے آج 12.25 پہ چلا گیا، اس سے قرضوں کا حجم کتنا بڑا ہے، اس سے پاکستان کے قرضے کتنے بڑے، اس سے جو معیشت تباہ ہوئی ہے، جو کاروبار لوگوں کے تباہ ہوئے ہیں بزنس کمیونٹی کے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے قرضوں کے اوپر کتنا فرق پڑا ہے، کتنے بڑھ گئے ہیں، وہ بھی کمیشن میں لایا جائے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ مجھے جو اگر کمیشن کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر آ جائیں، اس میں نیب کو شامل کرنا کیا میسج دے رہے ہیں؟ نیب کو انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں بتائیں سر مجھے سلمان غنی صاحب۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو مقدمے نہیں بنائے، وہ تو نیب نے بنائے، لیکن آپ کا ایک وزیر آ کے ٹی وی پہ کہتا ہے کہ جی ہم نے بنائے ہیں، نیب نے تو نہیں بنائے۔ تو اس نیب کو آپ شامل کر رہے ہیں، اس میں آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کو شامل کر رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس میں جو ایریا ایکسپرٹس ہیں وہ تو شامل ہے ہی نہیں۔ آئی ایس آئی کا کیا کام ہے اس میں ایم آئی کا کیا کام ہے؟ کیوں آپ ایسے اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں؟ اور آئی ایس آئی اور ایم آئی کو بھی ان خرافات سے دور رہنا چاہیے، یہ جو پولیٹیکل ڈویژن کریٹ کر رہے ہیں اس سے دور رہنا چاہیے، ورنہ جو یہ نالائق اعظم اور نااہل اعظم کا یہ جو فیصلے ہیں نا، اس کا جواب چند اشخاص کو نہیں پورے اداروں کو دینا پڑے گا۔ تو ایسے اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا، ان کو تنقید کے لیے عوام کے آگے کھڑا کر دینا، یہ ملک کے ساتھ کوئی بہتر سلوک نہیں ہے، یہ ملک کے ساتھ زیادتی اور ظلم کے مترادف ہے۔ آپ کیوں عوام کے اندر ڈویژن کریٹ کرتے ہیں اداروں کو سامنے لا کے؟ اتنی ہمت ہے تو سامنے خود آؤ۔ اور ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، میرے جو کمیشن کے بارے میں بات کی نا وہ بھی ذرا سن لیں کہ یہ کمیشن بنے گا اور ضرور بنے گا، لیکن اس کمیشن کو یا پھر کوئی انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل آڈٹ فرم جو ہے وہ اس کا آڈٹ کرے، یا کوئی بین الاقوامی مالیاتی ادارہ اس کی انویسٹیگیشن کی ذمہ داری ہے، جو انڈیپینڈنٹ ہو، اس پہ نہ کوئی پولیٹیکل پریشر ہو، نہ اس کا مقصد نالائق اعظم کی طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو، اور نہ اس کا مقصد جی آئی ٹی بنا کے کسی کو قانون کے اندر ڈریگ کرنا، کٹہرے میں بے گناہ کو کھڑا کرنا۔ تو یہ کمیشن نہیں ہے، یہ جی آئی ٹی ہے، اور یہ کس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے وہ عوام کو پتہ ہے۔ پہلے بھی جو جی آئی ٹیز بنی ہے وہ جس لیے بنی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ ایک منٹ، تو جو انٹرنیشنل کوئی فائنینشیل آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کی تحقیق کریں، اور یا پھر کوئی انٹرنیشنل آڈٹ فرم جو ہے وہ اس کا آڈٹ کرے، اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ اس جعلی حکومت اور نالائق اعظم کو پیش نہیں ہونی چاہیے، اس کی رپورٹ پارلیمنٹ کو پیش ہو، پارلیمنٹ دیکھے اور فیصلہ کرے کہ اگر کوئی irregularity ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے، اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ اس رپورٹ وہ کتنی انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے، اور اس ایسے شخص کو اس کی رپورٹ جائے جس کو معیشت کی الف بے نہیں پتہ، جس نے معیشت کو ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ معیشت ہوتی کیا ہے، اور چند دوستوں کو نوازنے کے لیے اگر وہ چینی کے ریٹ جو ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، تو ایسے شخص کے آپ نے آپ یہ فیصلہ دینا چاہتے ہیں؟ بالکل کسی سیاسی جماعت کو اس کمیشن کے آگے پیش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ذاتی مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے، جو اہداف ان کو
पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के दूसरे हथकंडों से हासिल नहीं हुए, वो इससे हासिल होने चाहिए। कमीशन ज़रूर बने, और ये मैं आज कहती हूँ कि ज़रूर बने, ताकि एक दफ़ा कंटेनर पे चढ़ के जो दावे किए हुए हैं और उसके बाद इक़्तिदार में आने के बाद जो खूबसूरत कारकर्दगी है ना, ताकि उसका पोल एक दफ़ा खुले और आवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और आप ही सड़कों पर निकली, आप ही मुकाबला कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इसहाक डार साहब हैं वो मुसलसल मुझसे मकरूर है। उन्होंने बरतानिया में जो सियासी पनाह की दरख्वास्त भी कर दी है, तो इसमें क्या कहती हैं? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। यहाँ पे एहतसाब हो रहा हो तो फिर ज़रूर उस एहतसाब के आगे पेश हो, लेकिन जहाँ विच हंटिंग हो रही हो, जहाँ पर पकड़ के ज़बरदस्ती जेलों में बंद किया जाए बगैर किसी सबूत के, जहाँ मरियम नवाज के लिए तो रियायती बन जाती, लेकिन अलीमा खान जो कि अपना इतराफ़ मेरे ऊपर जो मुकदमा बना वो 19 साल की उम्र का बना, जब मैं 18 या 19 साल की मियाँ साहब की डिपेंडेंट थी। तो जो औरत अपना जुर्माना भर के इतराफ़े जुर्म कर चुकी, एमनेस्टी स्कीम से दोनों भाई बहनों ने फ़ायदा उठाया, जो कि इतराफ़े जुर्म है कि पहले हमने ये छुपाया था, झूठ बोला था, और अब हम एमनेस्टी स्कीम का दोनों बहन भाइयों ने, अलीमा खान हो या वो इमरान खान हो, दोनों भाइयों ने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया, इतराफ़े जुर्म किया कि पहले हम गलत थे, तो उसके बाद हमने अपना ब्लैक मनी जो है वो वाइट करा दिया। तो फिर GIT तो उस पर भी करनी चाहिए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तो अगर आज ये नवाज शरीफ साहब तो आ गए, वो सबके हिस्से का जो जुर्म था वो उन्होंने अपने सीने पे सह लिया, लेकिन क्यों आएगा? जिस दिन पाकिस्तान के अंदर इंसाफ होगा उस दिन ये सब आएंगे, अपना एहतसाब भी देंगे और इंशाल्लाह सुरखरू भी होंगे। छुपाने के लिए कुछ नहीं है। कि जो बात आप कर रही हैं वो बिलावल ने कहा है कि आप दोनों मिलकर हुकूमत के खिलाफ कटेरर पे चढ़कर तहरीक चलाएंगी। और दूसरा मेरा सवाल, क्या नवाज शरीफ के साथ जेल में किसी ऐसे शख्स से मुलाकात की है जिसमें ये कहा गया, आपको पैगाम दिया गया कि आप हुकूमत के खिलाफ बात ना करें? मेरे इल्म के मुताबिक मियाँ साहब से तो किसी की ऐसी मुलाकात हुई नहीं, ना मियाँ साहब ऐसी मुलाकातें करते हैं। अगर वो ऐसी मुलाकातें करते होते तो इस पर सलाखों के पीछे ना बैठे होते। नंबर 2, आपने जब बलावत की बात की है तो बलावत की अपनी जमात है, मेरी अपनी जमात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। उनका अपना एजेंडा है, हमारा अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, उनका अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है, उनकी अपनी पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है, हमारी अपनी पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है। लेकिन मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं करती। मौलाना साहब जो है JUIF और जितनी भी और पॉलिटिकल जमातें हैं जिसके अंदर ANP भी शामिल है, जिसके अंदर छोटी छोटी इलाकाई जमातें भी शामिल हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अंदर और इस जाली हुकूमत को फारिग करने के लिए, इसको जो इन्होंने जुल्म मईशत के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ रवा रखा है, जिस तरह आज भी आपको पता है कि आज भी सुबह खबर आई कि आटे की बोरी के अंदर एक 20 किलो के जो आटे का थैला है उसमें भी इजाफा हुआ है, तेल जो पकाने का तेल होता है उसके अंदर भी इजाफा हुआ है, 100 रुपया। मैदे की बोरी में भी इजाफा हुआ। और आज बिजली के बिलों को बढ़ाने के लिए, बिजली की कीमत बढ़ाने के लिए भी आज सिफारिश आ गई। तो ये जो तनज़ली तरीके पाकिस्तान की मईशत की हुई, इसको महीनों में, साल लग जाएंगे ठीक होने में। इसके आगे बांधना चाहिए और कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिससे तमाम जमातें जो है अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए जहां उनके इंटरेस्ट को कन्वर्ज करना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम की खातिर आज उनको इकट्ठा होना चाहिए। इस जाली हुकूमत को, जाली मैंडेट को वापस करवाने के लिए, IMF से पाकिस्तान की जान छुड़वाने के लिए, इनको वापस भेजने के लिए, इस जालिमाना और अवाम दुश्मन बजट को वापस करने के लिए, इनको जाली मैंडेट जो छीना है उसको वापस करने के लिए इनको इकट्ठा होना चाहिए।
से रिपीट कर देती हूँ कि जो भी जमात, चाहे वो मुस्लिम लीग, नून हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी, अगर वो इस वक्त अवाम के साथ खड़ी ना नजर आई, अगर उन्होंने अवाम के इशूज पे अवाम का साथ ना दिया, अवाम जो पिस रहे हैं उनके लिए वो आवाज ना उठाई, तो वो भी बात अवाम के जो मुजरिम होंगे गैज़ो गज़ब का निशाना भी बनेगी, तारीख के दिन शहबाज शरीफ साहब और इसहाक़ साहब ये दो लोग गए थे जनरल हरीश शरीफ के पास और कहा था कि एक्सटेंशन आपको नहीं दी जाती, जिसके बाद हमें इंतकाम का निशाना बनाया गया। आप इस मौक़िफ़ की तस्दीक करती हैं कि तर्दीद करती हैं? जिन्होंने, देखिए मैं इस मौक़िफ़ की उन्होंने वो उधर क्या बात हुई है, क्या वो हुआ है, उसमें मैं शामिल नहीं, लेकिन मुझे इससे बहुत ज़्यादा का इल्म है, लेकिन मेरा मैंडेट नहीं है यहाँ पे बात करने का, मैं अकेली उस पर बात नहीं कर सकती। वो जब मियाँ साहब के पास मुनासिब मौका होगा, वो करना चाहेंगे, वो ज़रूर करेंगे। अच्छा मैडम, ये रहनुमाई फरमाते हैं कि लेकिन मुझे इससे बहुत ज़्यादा का इल्म है। अच्छा मोहतरमा, ये रहनुमाई फरमाते हैं कि आप समझती हैं कि जरदारी साहब के जो केस बने हैं वो झूठे थे, और दूसरा ये कि एहतजाज का रास्ता आप इख्तियार कर रही हैं, तो इसमें असम्बलियों से इस्तीफों का ऑप्शन पे भी गौर कर सकते हैं आप लोग? देखिए झूठे थे या सच्चे थे, मुझे इसका इल्म नहीं, मुझे सिर्फ इतराज़ इस बात पे कि वो बाकी उनके तो ऊपर अभी कहते हैं ना कि इन्वेस्टिगेशन का जो स्टेज है इस पर उनको गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि जिन पे चोरी साबित हो चुकी है, जो खुद उसका इकरार कर चुके हैं, वो कानून से मामला क्यों, वो कानून से बाहर क्यों? तो ये कि जी वो मुस्लिम लीग नून का है तो उसको पकड़ लो, चाहे वो बेकसूर है, वो पीपल्स पार्टी का है तो उसको पकड़ लो, चाहे उसकी अभी स्टेज जो है वो इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन अगर उसका ताल्लुक जाली हुक्मरानों से है तो उसको तो हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, चाहे आपकी 10 प्रॉपर्टीज निकल आए, या आपके कर्जे माफ कराने का सबूत आ जाए, या आपका बनी दादा का घर रेगुलराइज कराने का सबूत मिल जाए कि आपने वो जाली जमा कराया था, या आपका और आपकी बहन का सिलाई मशीनों के अलावा या ज़कात और खैरात के अलावा आपका टू डेट कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और आपके अरबों रुपए के खर्चे हैं, और वो कहाँ से हो रहे हैं? उस पर ऐसे मुकदमा नहीं बनता। आपके वालिद साहब तो कोई अरबपति बिजनेसमैन नहीं, थोड़ा सुंदर ही रख लेना, आप गुस्सा आ रहे हैं बीच में। किसी ने कभी कारोबार नहीं किया। अजीब है। अलीमा खान साहब का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मरियम नवाज के लिए जीआईटी बन सकती है, वो आईएसआई और एमआई के सामने पेश हो सकती है। आपको पता है ना कि मैं जब जीआईटी में गई थी, उसमें बाकी तो सारे डमीज बैठे हुए थे, मेरे से ज्यादा सवाल आईएसआई के रिटायर्ड अफसर नहीं किए, सब जीआईटी को वो लीड कर रहे थे। मैंने तो अपने जवाब दिए, अलीमा खान को भी लेके आओ, इमरान खान को भी लेके आओ, जहांगीर तरीन को भी लेके आओ, और इनके जो वजीर हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, वो इस काबिल नहीं है कि उनका नाम लिया जाए, सब समझते हैं वो कौन कौन। जैसे ही किसी ने कोई वजीर बना, उसकी फाइल यूं बंद हो जाती है, और उनको कहा जाता है कि नहीं जी, अगर हमने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया तो हुकूमत कमजोर हो जाएगी। तो ये एहतसाब हो रहा है। पहले तो आप एहतसाब करें, सबको लाएं बीच में, और दूध का दूध और पानी का पानी करें। हम तो दे चुके, 3 नस्लों का हिसाब दिया, निकला कुछ भी नहीं निकला, फिर भी एक काम हो, तो दूसरों को लेके आए जरा। फिर मैं मानूंगी कि और आपने जहाँ तक असेंबली से देखिए, ये सारी बातें जो है वो एपीसी में डिस्कस होंगी, उसमें हर जमात अपना अपना एजेंडा बना के जाएगी, और वहाँ पर जो फैसले होंगे एक जॉइंट ऑपोजिशन के कंबाइंड जो अगर स्ट्रैटेजी बनी, जो कि बननी चाहिए, तो उसमें इन चीज़ों का फैसला होगा। मरियम नवाज साहिबा, आप मामला चाहे आज परवेज रशीद साहब भी आपके साथ बैठे हैं, डॉन लीग से लेकर अब तक आज भी आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएसआई और एमआई का नाम लिया, और सियासी हलकों में और सहाफ़ती हलकों में यही कहा जाता है कि फ़ौज बतौर इदारा आप उसकी मुखालफत करती हैं, आप उसके खिलाफ बयान देती हैं, ये मामला डॉन लीग से चलता आ रहा है। आज क्या अब 2018 के इंतखाबात के बाद आज फिर आप एक वही एग्रेसिव टोन ले रही हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले भी आपने शहबाज शरीफ साहब के बयानिए से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि ये मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है। आपकी पार्टी ने क्या फैसला कर लिया है कि इस इदारे के साथ आप लोगों ने किस तरह चलना है? और दूसरी बात ये कि आज एक बात का जवाब है, आप दे दीजिए, फिर मैं दूसरी तरह पूछ रहे हैं। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और ये बतौर इसमें पार्टी का मौका लाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। आप बतौर पाकिस्तानी, मैं बतौर पाकिस्तानी, आपने कहा कि आप तनकीद करती हैं फौज पे, मैंने कहाँ तनकीद की है फौज पे बतौर इदारा? मैं तो ये कह रही हूँ, आप भी कहें, आप समझते हैं कि फौज को या MI को या ISI को घसीटना चाहिए था? अगर आप, मैं आज आपसे भी सवाल करती हूँ बतौर पाकिस्तानी, जरा बताइए आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? हाँ ना करें सवाल तो आपसे लीड आप कर रही हैं पार्टी। चलिए आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं भी आप 1 मिनट के लिए भूल जाए कि मैं मरियम नवाज हूँ, आप एक मिनट के लिए समझ लें कि मैं और आप 2 पाकिस्तानी हैं। आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? अगर मैं पाक साफ हूँ और मेरा पूरा करियर साफ है, मैंने कभी कोई बदनियती नहीं की, तो चाहे जो मर्जी इदारा आ जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये किया ना, देखें अगर मैं आपको ये कहूँ, आपने कहा जो मर्जी इदारा आ जाए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपका ताल्लुक सहाफत से, यहाँ मुझे जरा बैठ के इकोनॉमिक पॉलिसी बना के दिखाएं, आप दिखा देंगे? आपका काम है ही बिल्कुल। और आप मुझे ये कहेंगे कि आप मुझे क्यों घसीटते हैं किसी ऐसी चीज़ में जो मेरा मैंडेट में, जो मेरा आईनी मैंडेट में, या जिसमें मुझे कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, या जिसमें एक ऐसा मौका आएगा जब मुझे एक पॉलिटिकल डिवीजन क्रिएट होगी, लोगों को ये पता चलेगा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। जब ये साबित हो गया कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो आप इदारों को उसका हिस्सा क्यों बना? मैं आज भी एक समझती हूँ कि जो इदारों के सरबराहान हैं, उनको इस चीज़ में, इसको सख्ती से इसको रोकना चाहिए, उसको इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनको पैटी पॉलिटिक्स में घसीटा जाए, और बतौर पाकिस्तानी मेरा हक, इसके लिए मुझे किसी पार्टी के मैंडेट की जरूरत नहीं। मैं समझती हूँ कि जो मेरा पाकिस्तान का आइन कहता है, जो कानून कहता है, अगर उसके दायरे में रह के बात होगी तो मंजूर है, और उसके आगे इस तरह तस्लीम हम है। लेकिन अगर उसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो वो मुनासिब हो। मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा ये कि आजकल एक और डिबेट जो मीडिया के ऊपर भी चल रही है, वो है आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के हवाले से। आप बतौर वाइस प्रेसिडेंट, मैं आपकी ज़ाती राय भी पूछ रहा, बतौर वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नवाज, आपकी पार्टी के सिलसिले में क्या पोजीशन है? देखें, जब वो मसला, अभी तो कोई अनाउंसमेंट हुई, जब वो अनाउंसमेंट होगी तो उसमें बतौर पार्टी मेरा क्या मौक़िफ़ होगा, या बतौर पार्टी मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ होगा, ये तो वो बैठेंगे, आपस में बात करेंगे। जब इशू सामने आएगा तो मैं उस पर जंप नहीं करना चाहती, लेकिन फिर मैं एक ही बात करूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान के जो आइन और कानून में लिखा है, कुरान पाक के बाद मेरे लिए सबसे जो मुक़द्दस किताब है वो आइन की है, उसमें जो लिखा है पाकिस्तान को उसी के मुताबिक चलाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उसमें वो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, या वो एक पॉसिबिलिटी है या नहीं, तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू जंप द गन। लेकिन जब वो आएगा वहाँ ना पार्टीज बैठेंगी, अपने अपने राय अमल बनाएंगे, अपना अपना स्टांस लेंगे। मैं पार्टी के खिलाफ इस वक्त नहीं बोलूँ, क्योंकि अभी वो मामला मेरे सामने ही है। मैं पूछना ये था कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि नवाज शरीफ का जो मिसाली जोहरियत के हवाले से नवाज शरीफ, तो क्या शहबाज शरीफ मिजाज मिशन के हामी है, तो क्या दोनों शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो मेरा तो बयानिया बहुत सिंपल है, नवाज शरीफ साहब का बयानिया भी बहुत सिंपल, वो ये है कि जाली तो जाली और जाली मैंडेट को सिर्फ रोका जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, उसको दबाव नहीं दिया जा सकता, उसको आने वाले वक्त के लिए एक प्रेसिडेंस नहीं बनाया जा सकता, ना बनाना चाहिए। तो मैं, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट के फ्लोर के मामला को एज अपोजिशन लीडर नहीं चला रही, मियाँ साहब का एक बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है, और वो भी यही है जो मेरा है। जाली हुकूमत से ना वो आपको कुछ दे सकती है, ना आपको उसको एक डेटा पैकेज देना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्योंकि अपोजिशन लीडर हैं, उनके, मैंने आपको पहले भी कहा कि उनके पेश नज़र कुछ ऐसे मामला होते हैं जो मेरे पेश नज़र नहीं, जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे बैठ के बात करना बहुत आसान है, वहाँ पे हाउस को जाके चलाना और उसमें जो रुकावटें उसको दूर करना एक फर्क था। लेकिन मेरा और मियाँ साहब का जो मौक़िफ़ है वो मैंने आपको बता दिया,
और ये भी कोई नोन वो नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब बहुत प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है और वो उनका एक हमेशा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है जो कि उसको वॉइस करने में, और कभी उन्होंने कोई मेरा ख्याल है हेवी लिफ्टिंग नहीं रखी। सब जानते हैं कि उनकी अप्रोच एक फर्क है। जाहिर है जब एक 4 बहन भाई होते हैं, चारों की अप्रोच फर्क होती है, उनकी सोच फर्क होती है, लेकिन वो पार्टी फैसलों के वो भी पाबंद है, वो भी डिसिप्लिन थे, वो भी नवाज शरीफ जैसे ये कहा जा रहा था कि वो ये करते हैं वो करते हैं, वो अपने भाई के साथ बहुत लॉयल है, वो पाकिस्तान के साथ बहुत लॉयल है, वो PMLN के साथ बहुत लॉयल है। अप्रोच का फर्क हो सकता है और उसमें एडमिट करने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई आर नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। जब मैं जमहूरियत की बात कर रही हूँ तो मुझे पार्टी के अंदर भी जमहूरियत है, वहाँ पे बातें होती, आखिरी फैसला नवाज शरीफ। ठीक है जी।